اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक कारी और हाफिज कुल्ल कुरान, जवान और मकबूल फेमस कारी जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है, जनाब हाफिज मुस्तफ़ा तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। चलिए पहले इनसे सलाम दुआ हो जाए, फिर इनकी तिलावत से प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ असातिज़े मोहतरम, यहाँ मौजूद नाजरीन और जो हजरात टीवी पर हमें देख रहे हैं उनकी खिदमत में। और माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। बहुत शुक्रिया। मेरे उन दोस्तों का सलाम भी कबूल कीजिए जो आपको पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। परवरदिगार कबूल करे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। सलामत। चलिए हम तैयार हैं कि हाफिज मुस्तफ़ा की तिलावत सुनी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान या रहीम या रब या रब। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नात। كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا منهم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. الله أكبر. لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ياك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حافظ ما شاء الله. قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله حافظ ما شاء الله. خالدين فيها. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات
خالدين فيها. اللهم ارزقنا يا رب. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله عليك. الله يرزقك. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله نعم. الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارزقنا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر. مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. نعم. اي والله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا الله أكبر. ما شاء الله حافظ، ما شاء الله. نعم. الله ما شاء الله حافظ. الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوحى إلي. يا سلام حسنين. يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله، ما شاء الله. كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فمن كان يرجو لقاء
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. فمن كان يرجو لقاء ربه قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله 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 أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر. ما شاء الله حافظ، ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللهم اجعلنا منهم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم نعم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. हसनैन अपने पूरे वजद में है, हसनैन को भी तिलावत करनी है. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
يجدك يتيما فآوى نعم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك أحسنت الله أكبر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أحسنت. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أحسنت ما شاء الله أحسنت. ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر. ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر ما شاء الله حافظ. فأما اليتيم فلا تقهر. نعم. وأما السائل فلا تنهر. نعم. وأما بنعمة
ربك فحدث. أحسنت. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أحسنت حافظ. اللهم ارزقنا من الكوثر. آمين. فصل لربك وانحر. اي والله. احسنت. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. माशा अल्लाह. बहुत शुक्रिया. एक फजीलत बहुत मारूफ है सूरह कहफ की आखिरी आयत की, जिसकी तलावत की है. ये आयत कहते हैं आजमूदा है. अगर सोने से पहले तलावत कर ली जाए नमाज शब के लिए इंसान बेदार हो जाएगा. अच्छा, यानी जागने के लिए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. घड़ी वाला नहीं, अलार्म वगैरह कुछ नहीं. बस इल्म व यकीन हो इस आयत के माना पर. जी. यकीन, दिल से यकीन हो. मैं इसका एक अहम हिस्सा यहाँ इख्तिसार से बयान करता हूँ. आखिर में है वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, यानी किसी को भी अल्लाह की इबादत में शरीक न बनाओ. कहा जाता है भला मोमिन भी मुशरिक हो सकता है. कुरान सूरह यूसुफ में कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून. ज़्यादातर मोमिन मुशरिक हैं. यानी क्या? सवाल हुआ, फरमाया जब आदमी कहता है लौला फलानुन लहलक, अगर फला ना होता मैं हलाक हो जाता. वलौला फलानुन लवायाली, अगर वो ना होता तो मेरा घर बिखर जाता, घर बर्बाद हो जाता. अगर फला ना होता तो ऐसा होता. अगर फला इस चीज़ को फला आदमी से ले रहा है, यानी इस नेमत को तो क्या कहेंगे? फरमाया इस तरह कहो. देखिए बहुत अहम तौहीदी बात है. जब आदमी दिल से इस तरह कहे तौहीद आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर जाती है. फरमाया कहो वलौला अन्नल्लाह मन्ना अलैया बिफुलानिन लहलक. अच्छा, अगर अल्लाह मुझ पर एहसान न करता, इस नेमत को इस ज़रिए से मुझे अता किया, यानी अल्लाह ने दिया, तो मैं हलाक हो जाता. जी, तो हाज अहमद आगा अभी तिलावत करेंगे. हमें मालूम होना चाहिए कि मुअल्लिम कुरान कौन है. अर्रहमान अल्लमल कुरान. जी, रहमान मुअल्लिम कुरान है, अल्लाह मुअल्लिम कुरान है. लेकिन मुझे एहतराम करना है इस मखलूक का, चूँकि मैं इसी ज़रिए से कुरान सीख रहा हूँ. ये बहुत अहम है कि हम दिल में ये तौहीदी बात रखें कि अल्लाह ने एहसान किया कि अहमद आगा के ज़रिए हमें कुरान सिखाया. अगर हम ये कहें कि फ़लाँ ना होता तो मेरा काम ना बनता, मैं तो बर्बाद हो गया होता, तो ये गलत सोच है. इसका मतलब ये है कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का कोई किरदार ही नहीं है. शुक्रिया. अल्लाहु अकबर. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपका नाम हाफिज है या हाफिज हैं आप? जी हाँ. या हाफिज हैं या मुहाफिज? ये कैसी गुफ्तगू है भाई. अल हाफिज अल कुरान अल करीम. जी हाँ. आपका नाम हाफिज मुस्तफ़ा है? जी हाँ, मुस्तफ़ा. खुश आमदीद, मरहबा. अरबी बोल लेते हैं? जी. फारसी आती है? जनाब फारसी बोलें, तर्जुमा हो जाएगा. इंग्लिश? नहीं, फारसी. जी हाँ. आप इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन मुझे नहीं आती. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुर्की में हमेशा जो भी हिफ्ज़ करता है उसको हाफिज कहा जाता है, ये उन्वान दिया जाता है उसे? दर हकीकत तुर्की में ये बहुत अहम है कि कोई हाफिज कुरान हो. उसके लिए ये बड़ी इज्जत और फ़ख्र की बात होती है, और उसके साथ कुरान की तरतील या तिलावत करना भी बहुत अहम है. जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, उसे कहा जाता है हाफिज मुस्तफ़ा. अहसंत. इराक़ में भी पुराने ज़माने में ऐसे ही कहते थे. अल हाफिज़ खलील इस्माइल, अल हाफिज़ मेहदी, अल हाफिज़, यानी हाफिज़ भी है, कारी भी है, उस्ताद भी है और मुजीज़ भी है. जैसे मुकरी. जी, मुकरी. जी, मुकरी.
मुकरी उसे कहते हैं जो पढ़ाता भी है और जी, तिलावत पढ़ते भी भी करता हैं, है, जानते कारी भी। भी। अगर मुमकिन हो तो हाफिज साहब हमें कुछ रस्म तुर्की की बताएं, ख़ास तौर पर रमज़ान की रातों की, दिलचस्प होगा। जब कोई शख्स हाफिज भी हो, कारी भी हो, तो नाम के साथ अल हाफिज लगाया जाता है और ये उनके यहाँ बहुत मोहतरम समझा जाता है। ख़त्म कुरान जो रोज़ाना में अंजाम पाता है, और ये उनके लिए बहुत अहम है कि हर बड़े प्रोग्राम की इब्तिदा तुर्की में कुरान की तिलावत से होती है। ये उनके यहाँ ख़ास रवायत है। माह मुबारक रमज़ान, हमारा प्रोग्राम महफिल कैसा लगा? मैं जानता हूँ तुर्की में से बहुत देखा गया है, लेकिन आपकी अपनी राय महफिल के बारे में क्या है? महफिल इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतना बेहतरीन पेश किया गया है टेलीकास्ट कि होता ये है। सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि ये आलमी लेवल का शो बन चुका है मेरी नज़र में। तुर्की में तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और कुरान को वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। तुर्की में एक रात कुरानी महफिल थी, ख़ास मेहमान थे उस्ताद अबुल कासिमी, लेकिन मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर ही नहीं जाने दिया गया। मैं माजरत चाहता हूँ। क्या कहा था आज अहमद जनाब मुस्तफ़ा ने? सामसून शहर में एक प्रोग्राम था, मैं था 10-11 साल का, शायद 12 साल, अंदर नहीं पहुँच सका, दरवाज़ा बंद हो गया, मैं सारी रात रोता रहा। तो उसका आपसे क्या रब्त है? मुझे उस प्रोग्राम में तिलावत करनी थी। हाँ, वो आए थे आपकी तिलावत चलो सुनने। तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। जनाब हाफिज मुस्तफ़ा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक बात अर्ज कर दूं, ये मोहतरमा जो यहाँ मौजूद हैं वो अहलिया हैं जनाब हाफिज मुस्तफ़ा की, जो ईरानी हैं। बराए मेहरबानी खड़ी हो जाएं और उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। आप सब उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। जनाब हाफिज मुस्तफ़ा के एजाज में शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और उनकी अहलिया मोहतरमा के लिए भी सलाम। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अजीम आया सोफिया मस्जिद है इस्तांबुल की। दुनिया में इसका कोई दूसरा नमूना मुश्किल है, इतनी बड़ी, और पूरा इस्तांबुल ऐसी ही बड़ी बड़ी मसाजिद से भरा हुआ है। वाज़ेह है कि ये उस्मानियों की बहुत बड़ी सल्तनत थी और ये शहर हकीकतन एक इस्लामी शहर था इस्तांबुल, लेकिन एक साजिश भी हुई तकरीबन उसी दौर में, तुर्की में भी और ईरान में भी। अलबत्ता ईरान महफूज रहा एक वजह से। तुर्की में रस्मुल ख़त बदल दिया गया। आज से तकरीबन 80-90 बरस पहले, मैं नाम नहीं लूँगा शख्सियात का, यहाँ तक कि अजान भी अरबी में नहीं होती। हमारे यहाँ रज़ा शाह के ज़माने में भी रस्मुल ख़त बदलने की कोशिश हुई, लेकिन मुकम्मल नहीं बदल सके। तुर्की में चूँकि रस्मुल ख़त बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता नस्लें कुरान पढ़ना भूल गईं, क्योंकि उनकी तहरीर ही बदल गई थी, उनका रस्मुल ख़त ही बदल गया था। मैं ख़ुद तुर्की गया हूँ, कब्रिस्तानों में आज भी फ़ारसी में लिखे हुए संगे लहद मौजूद हैं। जवान मुझसे पूछते थे ये क्या लिखा है, यानी अपने बड़े बुज़ुर्गों की कब्रें भी नहीं पढ़ सकते। नस्लन बादा नस्लिन, जैसे जैसे ज़बान और रस्मुल ख़त बदला वैसे वैसे सब कुछ बदल गया। और फिर यही आया सोफिया मस्जिद, ये मस्जिद म्यूज़ियम बन गई है तकरीबन, और यही हाल बाकी मसाजिद का भी हुआ, नस्ल बदल गई। और यही काम रज़ा ख़ान के ज़माने में ईरान में भी होने वाला था। एक बहाना बनाया गया कुछ नाम नहाद रोशन फ़िक्रों के साथ, जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग जो अगर ईरान न हो तो मेरा जिस्म भी न हो की बातें करते थे, उन्होंने कहा रस्मुल ख़त फ़ारसी बदलना होगा, लातीनी लिखाई आए, अजीब व गरीब दलीलें, छपाई आसान है, टाइप आसान है, पढ़ना यूँ है, लिखना यूँ है। कौन खड़ा हुआ इस साजिश के मुकाबले में? हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा बुरूजर्दी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ऐलान किया, फरमाया जब तक मैं ज़िंदा हूँ रस्मुल ख़त हरगिज़ तब्दील नहीं होने दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं रस्मुल ख़त नहीं बदलने दूंगा। और इसी तरह ये रस्मुल ख़त महफूज रहा। इसी की वजह से आज हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देखिए पाकिस्तान ने अपना रस्मुल ख़त नहीं बदला, यही वजह है कि अब भी कुरान पढ़ लेते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन तुर्की में लोगों को दोबारा बैठकर सीखना पड़ेगा, कितनी मशक्क़त से इस रस्मुल ख़त को पढ़ना सीखें ताकि कुरान पढ़ सकें, ताकि असल में कुरान का मतन पढ़ सकें। देखिए एक बाकायदा साजिश थी, तुर्की में पूरी तरह कामयाब हो गई और सच में नस्लों को कुरान से जुदा कर दिया। ईरान में भी कुछ नाम नहाद रोशन फिगरों ने यही कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल्लाहिल उज़्मा बुरूजर्दी ने होने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ताकीद करूँगा, हमें ज़रूरत है जनाब रिसालत, सादी को पढ़ें, हाफिज़ को पढ़ें, अपने अदीबों को पढ़ें, कुरान पढ़ें, अरबी सीखें, ज़बान मजबूत करें, ज़बान पर मुसल्लत हों। आजकल हम देखते हैं मैसेज भी लोग वैसे ही लिख रहे हैं जैसे बोलते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, यानी ज़बान को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर रहे हैं।
اگر آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، متن قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب اسی عظیم شخصیت کی برکت ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں اور شکر گزار ہیں ان تمام علماء کے جنہوں نے ہماری قومیت اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے زحمتیں کی، مشقتیں اٹھائیں۔ آئے سب مل کر ان کی بلند روحوں کو ہدیہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد